जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी को और सारी संगत को हैप्पी लोहड़ी। गुरु जी सभी संगत को लोहड़ी की बधाई दे रहे हैं। संगत जी, गुरु तो सारी दुनिया का दाता है, लेकिन अपने भक्तों का गुरु ही विधाता है। अपने भक्तों का कल्याण करते हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जब देने पे आते हैं तो झोली छोटी पड़ जाती है। बस शर्त इतनी सी है कि गुरु की भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर सकता वो तेरा गुरु भगवान करेगा। सारे ही काम जरूरी थे जिंदगी में और होते भी गए। ये मालिक, ये खुदा एक तेरी इबादत ही थी जो हर बार टलती गई। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु एक खुशबू हैं जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक हैं जो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटे ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਔਰ ਸੇਮ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਿਲੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਨਾਟ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। So I met Guru Ji in 82 in my husband's house, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਨੀਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਨਿਕਨੇਮ। Then we met him again in the same house in 86 also. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। So then in 91 we went to Jalandhar. My husband's younger brother, he told my husband ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸੁਣਦਾ, IAS ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। Then when my husband told by General Gill ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, when we went there, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਰੈਡ ਚੋਲਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੰਝੂ ਆਏ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਧੋ ਦਿੱਤੀ। और मैं एक चीज बोली जा रही सी, सीइंग एट गुरुजी's फेस के
ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਾਈ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਿਕਨੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। One day Guru Ji told me those prayers which I used to pray in front of Guru Nanak। और मैं हैरान कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਹਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਜੋ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। So everything which I have come to know little bit, I want to share all this with you only। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਖਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਫਲੈਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਅਵਰਸੈਲਵ ਸੋ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹੁੱਜਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੀ, ਜਨਰਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੱਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, just to connect us with one universal Lord, ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਕਾਊਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਵਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਟੱਪੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ, ਔਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟੱਪੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ 40, 30, ਮੈਕਸਿਮਮ 50, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਵਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਖਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਮੀਨਸ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਵੈਂਟ देयर फॉर माई माइग्रेन और गुरु जी सुपने च आए एंड ही ब्लेस्ड मी इन माई ड्रीम विद हनुमान जी की मूर्ति। वो एक छोटी जी 3-4 इंच का तुसीं पीस लै लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ जी बनी हुई सी। उस जाली च हनुमान जी की मूर्ति सी। मैनू सुपने जाके कहंदे गिलांटी इनू ना अपने मत्थे नाल घुट के लगा लै। और मैं सुपने च कह रही हाँ कि गुरु जी तो कहते ने भी ये शिव जी दी मतलब कि भगत ने, शिव जी दी शक्ति है। ते ये नहीं सी पता कि शिव जी खुद ने, कि ये मैनू हनुमान जी क्यों दिखाई जाते ने। और मैनू कोई पता नहीं कि हनुमान जी भी कनैक्टेड विद शिव जी। और नैक्सट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं अपना फेस देखा मिरर च, तो मैं वो दा निशान अपने मत्थे ते देखा जो गुरु जी ने मैनू वो मूर्ति दिखा के कहा सी घुट के मत्थे नाल ला लै। मैं हैरान कि ये तो मैं सुपने च कीता सी, ते गुरु जी दा ये चीज़ जिहड़ी कहंदे सी कि जब मैं सुपने च हुन्ना मैं साक्षात हुन्ना। ये ना सोचना कि वो सुपना तुहानू ते मैं नहीं सी, मैं उस वेले प्रेजेंट हुन्ना। ते वो निशान अज भी मेरे फेस ते वो मत्थे दे उत्ते सेम जगह ते वो निशान उस जाली दा बनिया होया। और उस तो बाद जदों कोई चीज़ समझ नहीं सी आंदी तो नैक्सट जो गुरु जी कोल जांदे सी वो कन्फर्म कर दिंदे सी। तां मैं जदों नैक्सट डे गई, मैं देखा सिस्टर गुरु जी कहंदे फिर कल्याण करा गई। गुरु जी ने ये सारिया चीज़ां जदों इन्हां ने अपना दरबार लगाना शुरू किया जलंधर दे विच, तां इन्हां ने एक रुद्राक्ष दी माला भी पाई हुंदी सी। उहदे विच गिलास सेवादार लिया के खड़े ट्रे च रख लिआंदे सी, उहदे च डिप कर करके वो जिहड़ा अमृत सी सारी संगत नूं, पूरी संगत नूं जिसनों रिक्वायरमेंट होंदी सी उन्होंने इशारा करके बुलाते सी। किसी नूं एक गिलास, किसी नूं 4-4 गिलास पिला देंदे सी, किसी नूं कुछ भी नहीं सी मिलता। ये मतलब कि तो गुरु जी नूं पता हुंदा सी की कर रहे ने। ये मतलब कि जल प्रसाद पिला के भी मतलब कि उन्हां दे बड़े वड्डे इलाज बीमारियां दे भी कर दिंदे सी। जो किसी नूं कोई होर कोई इकनॉमिकल कोई फाइनैंशियल प्रॉब्लम कुछ भी इदां दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस तो बाद गुरु जी ने जदों जनाहुजा दे घर ते पान के पत्ते मंगवाते होंगे संगत दे उत्ते, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि बैग ते लगा के पान के पत्ते कहंदे सी इहनूं हुण चलदे पानी च छड्ड के आओ इहनूं। और फिर इन्हां स्पून दे नाल करना शुरू कर दिता। स्पून लैके ते वो जिथे जिथे तुसीं अपना दसदे सी कि मैनूं ये तकलीफ है उहनूं टच कर दिंदे सी ते उन्हां नूं रिलीफ मिल जांदा सी। जदों मेरी वारी आई तां गुरु जी दा हमेशा यही कहंदे सी कल्याण करा गई, खुश रह, ऐश करो। मतलब कि ये 3 वर्ड मैनू मतलब कि गुरु जी बोल दिंदे सी। ते मिसेस दपिंदर भी नाल बैठे सी, मैनू कहंदे तू हौली किते ने कुछ बोल जानी है और गुरु जी तू कल्याण करा लैनी है। फिर सानू ये ना समझ आनी कल्याण बोली जाते ने, कल्याण करागी, कल्याण करागी, कल्याणकारी दा मतलब की होया। ते ये भी फिर शब्दां तो पता लग्या कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्दां दे विच शिव जी नूं ही कल्याणकारी किया। ते गुरु जी जदों भी अपना कल्याण करते सी किसी का ते बोलते यही चीज कल्याण करा गई, खुश रहो, ऐश करो। ते ये चीज़ां आस्ता आस्ता बननियां शुरू हो गई। ते फिर मतलब कि क्योंकि ही हिमसेल्फ इज लॉर्ड, उदों नहीं सी सानू पता। तां जिहड़ा एक गुरु है, जिहड़ा एक रब है, भगवान ईश्वर है, ही इज आवर इनर नोअर, साडे दिल च की है। फिर ही सर्चर ऑफ हार्ट्स कि हुण इहदे दिमाग च ये की चीज़ां चल रही ने और
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੱਟਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਨੋਅਰ। ਇਨਰ ਨੋਅਰ ਮੀਨਸ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਰਾਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਿੱਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਓਨਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿਰ, ਕੰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਭੀ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸਟਰੋਂਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬੈਠੀ ਹੋਰ ਸੁੰਘਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਗਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। We are all beggars in front of our Lord। ਇਹ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ all generals, lieutenant generals, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਸ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ
मैं अज तक अपने घर बना के अपने हाथ नाल चाह नहीं कदी पींदी, सिर्फ दरबार दे जो मैं पीनी हां ओही चाह पी रही हां। ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫਰਮ ਦ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 33 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਣਾ। आई मेड अप माई माइंड कि मैं कोई दवाई नहीं लैनी। मेरी आवाज नहीं सी निकल रही बिल्कुल भी। मैं गई, चाय प्रसाद आया मेरे पास, तो मैं एक गिलास पी लिया। उन्होंने फिर आके पूछा, मैं दूसरा पी लिया, और फिर तीसरी बारी सेवादार आए तो मैं तीसरी बार फिर चुप के पी लिया। यू जस्ट बिलीव मी कि बाय द टाइम सत्संग खत्म हो गया, मैं घर जाते आई कुड स्पीक very without any sore throat, without any ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਧਾ, ਬਾਕੀ ਉਸਨੇ ਹਾਫ ਚਪਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਆਂਟੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 80% ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ 100% ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। then it was confirmed ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਹਜਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ 18 ਸੈਕਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ, ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਐਗਰੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਦਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ that we were very good students of ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਨੀ ਗਿਫਟਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫੇਥਫੁਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਫੇਥ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਟਿਕੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਬਾਣੀ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਜਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਟਿਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਆਵਰ ਟਰਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹਿੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੋਨਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੂਜਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਲਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵੇਲ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਫ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੈਸੇਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੀਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਫ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਬਜਾ, ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ।
क्योंकि गुरुआं ने जिहड़ी बानी है एक ह्यूमन बीइंग दे रस्ते विच की औकड़ां आंदियां ने, की खुशियां आंदियां ने, ओहदी लाइफ जर्नी उत्ते हर चीज उत्ते शब्द बनाए हुए ने। खुशी दे भी ने, गमी दे भी ने, नुकसान दे भी ने, फायदे दे भी ने, सारे किस्मां दे ने। गुरु जी ने A to Z जिन्ने भी बिल्कुल सिंपल सी, उन्होंने पता सी कि संगत ने जुड़ना है, कि वो हर संगत इस नो एंजॉय कर सके। 8 ग्लास उन्होंने गुरुजी ने मुझे उस दिन अमृत पिलाया। देखिए 250 ml का गिलास होता है, आसान नहीं है इतना पानी पीना। जो हम लोग सवेरे उठ के कई बार पानी पीते हैं तो वो भी हमको बड़ी तकलीफ होती है, और 2 लीटर्स पानी पी जाना फॉर अ पर्सन हु इज अदरवाइज इल, इट वाज अ बिग थिंग। बट आई मस्ट टेल यू कि मेरी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग थी गुरुजी की प्रेजेंस के अंदर कि मुझको वो इतना अमृत पीने में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। आजकल तो हम 4 जने मिलके एक थाली में लंगर करते हैं, मगर उस जमाने में अभी नए नए थे तो एक ही थाली में एक ही जना खाता था, मगर वही 2 ही चपातियां मिलती थी। तो जो डॉक्टर मेरे साथ गई थी उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये जो खाना है इसमें देसी घी है, और एज अ डॉक्टर मेरे को आपको एडवाइस करना है कि ये देसी घी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर डिसीजन आपकी है, क्योंकि इसको ये प्रसाद है। अगर आपको इसको प्रसाद समझ के खाओगे तो ये डिसीजन आपको खुद लेनी है। तो मैंने खुद डिसीजन ली और मैंने वो प्रसाद खाना शुरू किया। जब मेरी दूसरी रोटी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए, और उनके हाथ में एक रोटी थी और उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक रोटी और पकड़ा दी, और मैंने वो भी रोटी खा ली। 3 रोटियां जब खा ली तो उसके बाद गुरुजी ने कहा, चलो चोपड़ा हूं तुसी जा, परसों आना, मगर टेस्ट करा के आना। तो अभी से फाइन। सो हम चले गए। अगले दिन सवेरे टेस्ट कराया, 1 दिन के बाद रिजल्ट आता था उस जमाने में। और यू वोंट बिलीव इट, जब अगले दिन जिस दिन हमने शाम को गुरुजी के यहाँ आना था और सवेरे जब टेस्ट रिजल्ट देखा तो बिलिरुबिन काउंट बहुत स्टीपली नीचे आ चुका था। आई वाज रियली प्रेस्ड। 1 महीना के तकरीबन 22 पे काउंट रहा था, और अचानक इतना तो आई न्यू कि आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन, आई हैव रीच्ड वेयर आई वाज सपोज्ड टू गो, दिस ही इज द पर्सन फॉर मी। सो मैं गया गुरुजी के यहाँ, और इस बार मेरी वाइफ भी गई साथ में। और जब हम आश्रम में नीचे सीढ़ियों में उतरे तो गुरुजी खड़े थे। गुरुजी ने कहा, सुमन आंटी आ गई हैं, मैनू पता है तू उस दिन क्यों नहीं आई सी, और चल मैं तेरी फाइल खोल देना है। एंड फाइल खोलना मीन्स ही वुड, गुरुजी विल टेल मेनी थिंग्स अबाउट यू विच आपको आपके अलावा और किसी को मालूम नहीं होती हैं, वो नॉर्मली पर्सनल चीजें होती हैं। और गुरुजी ने 10-12 चीजें मेरी वाइफ के बारे में एक के बाद एक बता दी, और सारी की सारी जो गुरुजी ने बातें बताई वो बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी ने मेरी वाइफ को कभी पहले मिले नहीं था। मेरे को भी दूसरी बार ही मैं मंदिर गुरुजी के यहाँ गया था, तो गुरुजी की पावर्स मेरे को फिर से नजर आनी शुरू हुई। मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन गुरुजी कहने लगे कि चोपड़ा तेरा कल नो बिलिरुबिन काउंट 3 होएगा। मैं कह नहीं गुरुजी बहुत कट होएगा, बिकॉज पहले ही इतनी तेजी नाल काउंट हैज कम डाउन। सो गुरुजी से ने कोई गल नहीं, टेस्ट करा लिया। यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने टेस्ट कराया तो द बिलिरुबिन काउंट वाज एग्जैक्टली 3। यू नो हाउ ही कुड प्रेडिक्ट व्हाट इज द रेट एट व्हिच इट वाज ड्रॉपिंग, और एकदम अचानक ये सिर्फ 3 पे कैसे रुक गया, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। ये मेरा सत्संग इस यहाँ पे रोक देता हूँ, बिकॉज मेरे पास और सत्संग हैं आपको सुनाने के लिए। मैं सिर्फ वही सत्संग सुनाऊंगा आज आप सबको जो या तो मेरे साथ खुद हुए या मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे। एंड आई विल नॉट टेल यू एक भी सत्संग जो हियर से है, किसी और से मैंने सुना है। जब मेरा ये गुरुजी के मुझे ब्लेस कर रहे थे, पैरेलली एक और मेजर जनरल थे आर्मी के, वो RNR अपने एनुअल मेडिकल के लिए गए थे, प्रमोशन मेडिकल के लिए। और उस प्रमोशन मेडिकल में जब उनका हार्ट का चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। तो उन्होंने कहा कि आपको या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो मेजर जनरल जो थे वो अपनी चेकअप के लिए एस्कॉर्ट्स नया खुला था, डॉक्टर त्रेहन ने एस्कॉर्ट्स खोला था यहाँ पे। तो उन्होंने
ये उनके पास गए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि आपकी 100% हार्ट ब्लॉकेज है और इसका बाईपास ही एक तरीका है। और उस बाईपास के लिए उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दे दी 1 हफ्ते के बाद की। और आर्मी में क्या होता था, कुछ गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती थी जिससे आप ये ट्रीटमेंट बाहर करा सकते हैं, तो उन्होंने अपना वो एडवांस लेके एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में जमा करा दिया। बाईपास उस जमाने, आजकल तो तरह तरह के स्टैंड वगैरह लगा देते हैं, मगर उस जमाने में बाईपास एक बहुत बड़ी बात होती थी। सारी फैमिली घबरा गई और उन्होंने सबने, सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो गए, जगह जगह से इनके बच्चे भी आ गए। तो नोएडा में रहते थे, तो दूसरे तीसरे दिन किसी ने कहा कि एक गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में और वो हील कर देते हैं, अगर आप ठीक समझो तो आप जाओ। तो जनरल साहब कहने लगे, नहीं, आप लोग पढ़े लिखे लोग कैसी बातें करते हो, ये कोई गुरु ऐसे थोड़ी ठीक कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है एस्कॉर्ट्स वाला। उन्होंने कह दिया तो ये मैं नहीं बिलीव करता इसमें। फिर एक और दिन निकल गया, फिर किसी फैमिली मेंबर ने कहा कि आपका क्या जाता है, वहां पे कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी ले रहे हो, आप जाइए और जाके देख लो, अगर ब्लेसिंग हो जाती है क्या पता कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए आपके लिए। तो वो अगले दिन ये मेजर जनरल साहब आ रहे हैं, उस दिन मेरा दूसरा दिन था। जनरल साहब आए और जनरल साहब ने गुरुजी को बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो गुरुजी ने कहा यू डोंट वरी, गुरुजी ने कहा कि मेरे चेंबर से चलो। वो ही वाज मेड टू लाई डाउन इन द चेंबर। पान के पत्ते मंगवाए गुरुजी ने और उनके चेस्ट के ऊपर लगा कि गुरुजी ने एक मंत्र पढ़ा। 15-20 मिनट वो गुरुजी के चेंबर में लेटे रहे और उसके बाद आए और गुरुजी ने कहा कि जनरल साहब ਤੁਹਾਡਾ ब्लॉकेज क्लियर कर देता है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ zero blockage। Now, we all were listening. It was difficult for all of us to believe कि how a person who has been to escorts and has had जिसका पूरा 100% ब्लॉकेज है, वो आज बिल्कुल कैसे क्लियर हो गया। मगर गुरुजी थे तो उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हो, जनरल हो, मिलिट्री के आदमी हो, जाओ अपना टेस्ट करा लो, अगर ब्लॉकेज है तो आपका ऑपरेशन फिक्स्ड है, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो आपका कल्याण हो गया। तो वो जनरल साहब जाते हैं अगले दिन और एस्कॉर्ट्स कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप हमारा टेस्ट कर दो, और उनको बताते हैं कि हमने क्या किया। ऐसे हम ये गुरुजी के पास गए तो दो हंसने लगे। डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, 10,000 रुपया लगेंगे, और 10,000 उस जमाने में काफी अमाउंट होता था। तो फाइनली इन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने टेस्ट किया और वो ब्लॉकेज 0 था। एस्कॉर्ट्स वाले हैरान हो गए। उन्होंने फिर पूछा ये गुरुजी कहाँ हैं, कौन है, और डॉक्टर त्रिहन और उनके सब और डॉक्टर्स यहाँ पे गुरुजी के यहाँ आए। उन्होंने वो 10,000 रुपया भी नहीं लिया, अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गई, जो गवर्नमेंट से पैसा लिया था वो भी रिटर्न कर दिया गया, और जनरल साहब एक नॉर्मल बैक टू सर्विस ऑफिसर बन गए। तो मैंने आपको ये जो 2 सत्संग सुनाए, मेरा साथ हुआ, एक जनरल साहब के साथ हुआ जो बिल्कुल मेरे सामने हुआ, तो ये दोनों मेडिकल रिलेटेड सत्संग है। मगर गुरुजी के साथ मैंने बहुत सारे और अनुभव देखे जिसमें बियॉन्ड मेडिकल भी गुरुजी के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स थी। मुझे याद है कि उसी साल सर्दियों के दिन थे, नवंबर में, एक हमारे और गुरुजी के भगत थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे ये स्क्वाड्रन के, और वो मुझसे बोलने लगे एक दिन कि मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है आदमपुर की तरफ के, अगर आप ठीक समझो तो हम इकट्ठे चलेंगे, गुरुजी के यहाँ पे भी मिलके आ जाएंगे, गुरुजी के दर्शन ले लेंगे, उनकी ब्लेसिंग ले लेंगे, और फिर इसी तरह मेरी ट्रेनिंग फ्लाइट भी हो जाएगी। तो हम ने एक दिन पहले मैसेज भेजा पता करने के लिए कि गुरुजी वाकई जलंधर में है कि नहीं है, तो हमें पता लगा कि हैं, और जिससे हमने पूछा उन्होंने जाके गुरुजी को भी बता दिया कि एक पायलट लोग हैं जो ये आना चाह रहे हैं। तो हम सवेरे जहाज के कॉकपिट में 8 बजे जाके बैठ गए, और सर्दियों के दिन थे, अचानक विजिबिलिटी गिर गई, और हमारी फ्लाइट जो सवेरे 8 बजे टेक ऑफ करनी थी वो फाइनली 12:30 बजे विजिबिलिटी क्लियर हुई, और हम 12:30 बजे आदमपुर गए। फिर उसके बाद जब वहां आदमपुर से जलंधर अनदर 45 मिनट्स की टाइप थी, तो वहां तक जब हम पहुंचे तो तकरीबन 4 बज गए थे। तो शाम के 4 बजे हम यहाँ गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। वहां पे 4-5 लोग संगत बैठे हुए थे, गुरुजी अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे थे। 4:15 मिनट के बाद गुरुजी बाहर आते हैं और गुरुजी कहते हैं, ओ तुसी लोग आ गए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ हाँ गुरुजी कोई प्रॉब्लम हो गई, मैनू ना दसो, मैनू सब पता है
की प्रॉब्लम हो गई सी, बैठो बैठो भजन सुनो. एंड देन गुरुजी स्टार्टेड डूइंग सम स्मॉल लिटिल कन्वर्सेशन विद अस. एंड the air base commander in Adampur had told us that the last takeoff from Adampur is only at around 6:30. That means we must be in Adampur by 6 o'clock to check our aeroplane, start up and then go. So 4:45 बजे के करीब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखना शुरू किया और गुरुजी ने मुझे देख लिया कि मैं घड़ी देख रहा हूँ. तो उन्होंने कहा, ओए घड़ी ना देखो, पहला तो आंदे लेट हो, फिर तुसी घड़ियां देख दो. मैं कहने नहीं गुरुजी, मैं तो ऐसे ही टाइम देख रहा था, मगर हमको कोई जल्दी नहीं है, हमने तो आपके पास यहाँ आए हैं, तो हम जितनी देर होगा हम यहाँ रहेंगे. तो फिर हम बैठे रहे. शाम को अराउंड 8 o'clock गुरुजी ने किसी को इशारा किया, तो वो जो भगत थे वो लेके आए 2 साड़ियां और 4 लड्डू के डब्बे. उन्होंने मुझे और वो दूसरे पायलट को उठाया. उन्होंने कहा, चलो हम तुसी जाओ, आ लो आंटी, दोनों दी आंटियां ली एक साड़ी ते आ लो 2 डब्बे लड्डुआं दे. तो ही गिव इट टू अस. तो आई टोल्ड गुरुजी, नहीं गुरुजी, हुण तां असीं वापस जा ही नहीं सकदे, हुण तां टेक ऑफ साडी कल हैगी है, बट वी विल रादर stay with you and stay on, have langar and go aram se. Guruji said, nahi, hun tusi jao. So once Guruji's order was there, we left for the airport in Adampur, and then when we went there, we found that the base commander is standing there to welcome us and say ki some special instructions have come from Delhi, some special flight has to take place, the night flying has been cleared, the runway is lit, and that you all can go. So we went and started up the aircraft, and we finally reached home in Delhi at around 11:15. So the point I'm making is ये गुरुजी के facets देखो. गुरुजी ने हमको लंगर भी नहीं खाने दिया, हमको भेज दिया, हमको और तरह किसी फॉर्म में प्रसाद दे दिया और हमको कहा, और he had coordinated, he had tied up. Obviously these are his superpowers that he had exercised. बहुत वीआईपी लोग आते थे. अब वीआईपी वर्ड गुरुजी के यहाँ मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, किसी को वीआईपी समझना ही नहीं चाहिए. हम सब ऑर्डिनरी संगत हैं और गुरुजी के आगे कोई वीआईपी नहीं है. मगर कुछ लोग आते थे, वो वीआईपी थे, वीआईपी जैसे कुछ तो बिहेव भी करते थे. मैंने वहाँ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह को मिला, भजन लाल, मायावती, टीएन से बहुत लोगों को मिला. और अक्सर क्या होता था, जब भी कोई ऐसा आता था कोई सीनियर ऑफिशियल, तो गुरुजी मुझे कह देते थे कि चोपड़ा जा इन्हों कहानियां सुना. समटाइम्स ही वुड सेंड मी टू हिज चेंबर की जा इन्हों कहानियां उत्थे जाके चेंबर में सुना. So everybody sort of had a different approach to Guruji. Many of them were coming just to test कि Guruji करते क्या है. कुछ लोग genuinely blessing भी लेने आते थे, जैसे Prime Minister VP Singh थे, वो he was really he used to come to take blessings. अरुण शौरी बहुत आते रहे, मेनका गांधी आती थी, सब वो तो खैर सचमुच के बिल्कुल जुड़े हुए भगत थे. जब टीएन सेशन आए तो एक कोने में खड़े थे वो दीवार के साथ पीठ लगा के, और गुरुजी ने कहा चोपड़ा जा उन्हां नाल गल्लां कर. So I went and stood next to him, again pointing my back towards the wall, and we both were looking in front, and I told Mr. Session, Guruji has ordered me to speak to you, so I am going to speak and you better listen. So he says, but why has he told you to speak to me? I said, no, that is none of your business, that you can go and ask him. मुझको तो हुक्म मिला है कि आपको कहानियां सुनाऊं, मैं आपकी कहानी सुनाऊंगा. वो कहते हैं ठीक है सुनाइए आप. तो मैं सुनाने लगा अपने सत्संग उनको. तो उनकी एक डिफरेंट अप्रोच थी, मगर मैंने नोटिस किया कि वो जब गुरुजी के साथ जुड़े तो वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से जुड़े थे. जब मायावती आई थी तो उनके साथ बड़ी एंटोराज थी, बहुत से लोग उनके साथ आए. तो गुरुजी ने पहले तो उनको बोल दिया गया सेवादारों ने कि भी सारी सिक्योरिटी वगैरह आपके अंदर नहीं आ सकती, आप अकेले आइए. फिर मायावती आई तो गुरुजी ने कहा कि she was finding it difficult to sit on the ground, so गुरुजी ने कहा इनको मेरे चेंबर में ले जाओ. So I took her to Guruji's chamber, and now in Guruji's chamber there was nothing, there was just one bed, एक चटाई बिछी हुई थी नीचे. एक simple very ordinary room, जैसे एक जेन्युइन गुरु का कमरा होना चाहिए वैसा कमरा था. तो जब
ये मायावती आई, वो तो बोली मैं तो नहीं जमीन पे बैठ सकती। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक उनके लिए वो मूड़ा होता है ना, पूप जैसे होता है, उसको मंगवाया और उसको उनके ऊपर बैठा दिया और मैं जमीन पे बैठ गया। उन्होंने कहा आप कौन है, आप क्यों आए हैं मेरे को ऐसे लेके, आप क्यों मेरे को अपनी कहानियां सुना रहे हैं। तो मैंने उनको भी यही कहा कि गुरुजी का हुक्म है, मैं आपको जो भी उन्होंने कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपको नहीं सुनना तो फिर भी आप ना सुनिए, मगर मैं बोलता रहूंगा। तो हर तरह के लोग वहां पे आते रहे, कुछ लोग आके चले गए, कुछ लोग टिक गए, मगर जिसको ब्लेसिंग्स किसको मिलती है मैं उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। गुरुजी वाज वेरी कंसिडरेट। मैं जगह जगह पोस्टिंग पे था, कभी असम में मेरी पोस्टिंग थी, कभी साउथ इंडिया में पोस्टिंग थी, कभी मेरी पोस्टिंग अब्रॉड थी। मैं जब भी आता था दिल्ली तो गुरुजी के यहाँ जरूर जाता था और पहले सवाल गुरुजी ये पूछते थे कि कितने दिन लिया है। तो आई वाज टोल्ड हिम कि मैं 1 हफ्ते के लिए आया। तो उन्होंने कहना, गुरुजी ने यूज्ड टू टेल मी तेरे बड़े अपने काम होने हैं, दोस्ताना बिस्की भी तो पीनी है, तो सिर्फ 2 दिन आई, एक आज तो एक परसों, बाकी दिन तो अपने और अपने काम क्यों कर ली। He was very very considerate, to everybody when you came, from outside. He used to think much far. मैं considerate की बात बताता हूँ। नॉर्मली कई लेडीज अकेली आती थी गुरुजी के यहाँ पे और उनको अपना वापस कई बार लेट हो जाती थी। और उस खास करके जब वो एवलॉन रिसोर्ट्स में गुरुजी का आश्रम शिफ्ट हो गया था फ्रॉम जीके से, तो वहां पे अब तो खैर मेट्रो और एमजी रोड बहुत ट्रैफिक हो गया है। उस जमाने में खाली सड़क होती थी, खास करके जो लेडीज ने गुड़गांव जाना होता था तो उनको बहुत आइसोलेटेड सी सड़क मिलती थी। तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि उनके साथ कोई ना कोई जाए, कोई ना कोई गाड़ी आगे पीछे रहे, ताकि वो टिल दे रीच देयर मेन एरिया इन द टाउन वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। ऐसी एक लेडी थी जिनका नाम था दीपिका। गुरुजी की बहुत पुरानी भगत है, आज भी गुरुजी की भगत हैं, और वो भी अकेली जाती थी गुड़गांव और वो मेरे आगे खड़ी थी और मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने गुरुजी के पांव छुए, बोले कि मैं जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं। नॉर्मली गुरुजी वुड नेवर स्टॉप हर, बट दैट डे गुरुजी सेड नहीं तू हजे नहीं जाना, इतने बजा। सो व्हेन she sat down, she said, Guruji told her, I'll चोपड़ा नाल गल्ला कर। So that was an indication to me to sit next to her, and I went and sat. मैं जाके उनके साथ बैठ गया और गुरुजी तो that lady was a little more proactive, and उन्होंने मुझको पूछा कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। ऐसे बातों में पता लगा कि मैं कपूरथला का हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो हो कपूरथला में तो मेरी एक बहन भी रहती है, मेरी फर्स्ट कजन रहती है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, छोटा सा शहर है, आप बताइए उनका नाम, शायद मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने जो नाम बताया वो मेरी माँ का नाम, यानी कि वो लेडी जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता वो मेरी मदर की फर्स्ट कजन थी। तो मैं आपको एक छोटा सा बैक फ्लैश दिखाता हूँ। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं अपनी मदर के साथ कैलकाटा गया था एक छोटी हॉलीडे के लिए। उनके कोई रिश्तेदार वहां रहते थे, तो वहां जिस घर में हम रहे थे वो बहुत बड़े कोई ऑफिशियल थे, और वहां पे एक लड़की की बातें होती थी और कह रहे थे कि वो हॉस्टल में पढ़ती है, उसका नाम है गोगो। तो मैंने वो नाम तब सुना था, तो मेरे को नहीं मालूम था कि जिस लेडी के साथ मैं आज बैठा हूँ वो वही गोगो है जिसका नाम मैंने बचपन में 6th क्लास में कैलकाटा में सुना। तो कैसे गुरुजी ने एक दो लोगों को जो रिश्ते में क्लोज हैं मगर अदरवाइज कभी मिले नहीं है, साइड बाय साइड बिठा दिया, और ऐसी हमारी आपस में रिलेशनशिप होगी कि आज तक भी हम एक बिल्कुल क्लोज फैमिली जैसे एक हो गए हैं। तो एक और मैंने आपको फैसेट बताया गुरुजी का कि गुरुजी किस तरह लोगों को ऐसे जोड़ देते थे। बहुत सत्संग है मेरे को मालूम है जो जैसे गुरुजी ने लोगों को जोड़ा, पर मैं सिर्फ वही सुना रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक दिन हम दोपहर में गुड़गांव में या अपना दिल्ली में सुब्रोटो पार्क में रात को दोपहर का टाइम था, 3 बजे सो रहे थे। तो मेरी वाइफ को एक सपना आया, सपने में गुरुजी देखे और गुरुजी ने एक हाफ शर्ट पहनी हुई थी, फ्लीट्स पहने हुए थे और उन्होंने एक ट्राउजर पहनी हुई थी। हमने गुरुजी को हमेशा उनके रोब्स में ही देखा था, हमने कभी ऐसी ड्रेस में नहीं देखा। तो मेरी वाइफ जब एकदम चौंक के उठी नींद से तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है। तो मैंने कहा चलो आज गुरुजी के यहाँ जल्दी चलते हैं। तो हम गुरुजी के यहाँ गए
4:45 पहुंच गए। नॉर्मली संगत 6 बजे के करीब आती थी, तो जब हम 4:45 पहुंचे तो एक और लेडी कोई आई हुई थी, वो बाहर सीढ़ियों में वेट कर रही थी, हम दोनों भी वेट करने लगे। 5 मिनट के अंदर से दरवाजा खुला और वहां खड़े हैं गुरुजी। और गुरुजी हम तीनों की तरफ देख रहे हैं और गुरुजी ने वही हाफ शर्ट पहनी है, वही ट्राउजर्स और वही फ्लीट्स पहने। तो जब हमने देखा कि वो तो वही पहन रखे हैं जो हम, मेरी वाइफ को सपने में आया, तो हमने गुरुजी को बताया, मेरी वाइफ ने, कि गुरुजी ये हुआ, हम तो इसलिए जल्दी आए, आपको देखना चाहते हैं कैसे ड्रेस में। तो गुरुजी हमको पकड़ के अंदर ले गए। एक साइड बोर्ड पड़ा था, गुरुजी जंप मार के उसके ऊपर बैठ के चौकड़ी में मार ली और दोनों हाथों से एक तरफ से मुझको पकड़ लिया, एक तरफ से मेरी वाइफ को पकड़ लिया और छोटी छोटी अपनी बातें शुरू हो गई। 3-4-5 मिनट हमने ऐसे बातें की। उसके बाद गुरुजी अपना चेंज करने के लिए, तो मैंने आपको एक और फैसेट बताया कि कैसे गुरुजी मैंने गुरुजी अक्सर जब मैं गुरुजी के यहाँ जाता था, क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं आता था, जगह जगह से पोस्टिंग होती थी तो मैं आता था, पर जब भी गुरुजी के यहाँ जाता तो गुरुजी मेरे आपको अपनी सीट के पास ही कहीं बैठा लेते थे। तो एक दिन मैं गुरुजी से बहुत बातें करता था और गुरुजी भी मेरे से बहुत बातें करते थे। तो मैंने गुरुजी के पूछा, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं इतने महीने से आपको देख रहा हूँ, जिस दिन मैं आया था आपने इंस्टेंटली फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट 45 सेकेंड्स ऑफ माय प्रेजेंस इन योर मंदिर, आपने मेरे सिर पे हाथ रख के ब्लेस कर दिया था कि तेनों मैं की कर दूंगा। बट आई हैव सीन पीपल हियर 6-8 महीने, साल से आ रहे हैं, जिनको तसल्ली नहीं हो रही, जिनकी ब्लेसिंग, उनको लग रहा है कि उनको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। तो गुरुजी ने मुझको बताया, जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एसेंस ऑफ होल सिस्टम ऑफ गुरुजी इज। देखिए गुरुजी कह रहे हैं कि जो गुरु है ना, वो उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स और एनर्जी है। वो गुरु अपनी एक्स्ट्रा पावर्स और एनर्जी हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, हर डायरेक्शन में। और मंदिर भरा पड़ा है वो एनर्जी के साथ। ये जो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद, जो भी आप खा रहे हैं, जो भजन सुन रहे हैं, वो सब में गुरु की एनर्जी जा रही है, सब डायरेक्शन में। मगर सवाल ये है कि जिसने वो एनर्जी लेनी है, क्या वो उस एनर्जी को लेने के लिए तैयार है कि नहीं? He said to me कि जिस दिन आप पहली बार आए, गुरु के कहते हैं एक्सरे विजन होती है, वो थ्रू एंड थ्रू देख लेते हैं कि ये बंदा का एंटेना मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी लेने के लिए फुल्ली रेडी है कि नहीं, वो गुरु को पता लगता है। सो ही सेड, जिस दिन तुम पहली बार आए, वो जो 45 सेकेंड्स की जो वॉक की आपने मेरे तक मीटिंग, आई कुड सी फ्रॉम योर फेस, फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज कि आप का एंटेना फुल्ली रेडी है, फोकस्ड है इन द करेक्ट डायरेक्शन टू टेक ऑल द एनर्जी दैट आई वांट टू पंप। और इसलिए मैंने एक शॉट के अंदर आपको वो एनर्जी दे दी जिससे आप इंस्टेंटली या इमीडिएटली क्योर हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है। लोग आते हैं, हम देखते हैं मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, पिकनिक बना के चले जाते हैं, मगर उनका जो ध्यान है, फोकस है, वो कितना उस तरफ लगा है गुरु की एनर्जी लेने के लिए, वो क्लैरिटी लोगों में पूरी नहीं होती है। और ये मैं कई लोगों को समझा चुका हूँ 1-to-1 के अंदर भी। एक और चीज थी, गुरुजी कई लोगों को अपना पाँव या बाजू या हाथ या शोल्डर्स प्रेस करने के लिए बोलते थे। मुझे भी कई बार कहा, मगर बहुत लोग और थे जिनको मुझसे भी ज्यादा वो कहते थे पाँव प्रेस करने के लिए। और मेरी वाइफ और मेरी बेटियां, दे यूज्ड टू फील एनवियस। वो मेरे को बोलती थी कि गुरुजी आपसे क्यों दबाते हैं, हमसे किसी से क्यों नहीं दबाया कभी। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला कि मेरी बेटियां, मेरे वाइफ ऐसे बोल रहे हैं कि आप सिलेक्टिवली दबा रहे हो, क्यों नहीं आप, और बहुत लोग हैं जिनसे आप दबाव के। तो गुरुजी ने मुझे बात बताई। गुरुजी कह रहे हैं कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी की जरूरत है। जिन लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है मेरे से, मैं उनसे पाँव दबाता हूँ। जो गुरुजी जब भी एनर्जी देते थे दूसरों को, तो ये समय गुरुजी ने खुद जो बोला है वही बता रहा हूँ, वो गुरु की एनर्जी लॉस होती थी। देखो जो वर्ल्ड के अंदर है, एनर्जी का एक बैलेंस है। अगर एक तरफ से एनर्जी लॉस होती है
और दूसरी तरफ किसी को गेन हो रही है। तो जब गुरुजी दूसरों को एनर्जी देते थे तो उनकी एनर्जी लॉस होती थी, और गुरुजी कहते थे मैं जब दुआता हूँ इससे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही। सो ये बात जब मैंने अपने बच्चों को और बाकियों को बताई तो तब उनको लगा कि हाँ वाकई ये जो गुरुजी लोगों से सेलेक्टिवली प्रेस कराते हैं उसका क्या मतलब है। एक बार एक लेडी आई, राजस्थान की थी, कोई प्रिंसली फैमिली की थी, और उनके साथ 3 लड़कियां थी। वो ज्यों गुरुजी के यहाँ आए, मैं वहां नजदीक बैठा हुआ था, और गुरुजी से उन्होंने कुछ बातें की। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो तुम मेरे चेंबर चले जाओ, चोपड़ा तुम इन्होंने नाल ले जा। तो आई वेंट विद दीज 4 ladies to the chamber, and as per instructions I started narrating, but within 2 minutes I had just started narrating the satsang, then Guruji himself walked in. So I thought that it is time for me to leave since Guruji will take charge of the situation. तो मैं उठ के जाने लगा, तो मगर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तो सेफ है। तो गुरुजी ने पूछा, the second out of the 3 girls, the second senior most, उन्होंने गुरुजी ने उनसे पूछा इम्तिहान हो गए, किस तरह दे रहे पेपर। तो द गर्ल सेड कि गुरुजी अपने वालों तो मेहनत की सी, हम पता नहीं किस तरह का होया तुसी मैनू नहीं पक्का पता। तो गुरुजी ने कहा कि क्या सब्जेक्ट्स थे तेरे, मतलब। तो उसने कहा इको ऑनर्स सेकेंड ईयर का इम्तिहान था। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को फर्स्ट ईयर के 3 सवाल पूछूंगा, अगर तूने तीनों सवाल ठीक जवाब दे दिए तो यानी कि पास, और अगर तू वो जवाब ना दे पाई तो यानी कि ये तेरा काम ठीक नहीं रहेगा। तो यू वोंट बिलीव इट, इकोनॉमिक्स इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट। आई मीन नॉर्मली कोई और सब्जेक्ट्स के आपको कुछ नॉलेज हो सकती है, मगर इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। गुरुजी ने 3 सवाल पूछे और तीनों की तीनों उस लड़की ने कहा वाकई ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और तीनों के वो जवाब नहीं दी। अब मेरे को नहीं मालूम है बाद में कि पास हुई कि नहीं हुई, मगर the point I'm making is कि Guruji could tell her of questions of eco honors of first year. Now you have to have some special powers to be able to do this. So this is another facet of Guruji. Guruji के कई तरीके थे अपनी to educate people or to request or to suggest them how to get blessed. एक बार एक 85-year-old लेडी आई, वही ग्रेटर कैलाश में वहीं कहीं रहती थी, और काफी सार वो गुरुजी के पास बैठ गई और उसने कहने लगी गुरुजी मेरे गोड्या बड़ी दर्द हुंदी है, मेरे को बहुत तकलीफ है, प्लीज मेरे को आप ठीक कर दो। तो गुरुजी ने पूछा कितनी उम्र है आंटी तेरी, वो कहते 85 ईयर्स। कहते गुरुजी ने कहा कि 85 ईयर्स पे नहीं घुटनों में तकलीफ होगी तो फिर कब होगी। So this is expected. Everybody is supposed to get थोड़ा घुटनों का तकलीफ in 85 years. तो गुरुजी ने उनको 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा गुरबानी पढ़ती है, कहती नहीं। ओमपुर बहुत सवा आता है, कहते नहीं। अमृतवाणी पढ़ती है, नहीं। कहते घर जा, इत्थे ना आ, sit at home, be with your children, be with your grandchildren, do some prayers and you will be blessed. So in a way Guruji was trying to tell, come here to seek blessings, come here to listen to bhajans, come here to take amrit and prasad, but don't come here with small little things which are routine aging issues. So that's the thing that he wanted to. Guruji was very fond of doctors and Fauji, and I'll tell you why. I asked Guruji this question. मैंने कहा गुरुजी आप फौजीज के आपके साथ बड़ी संगत जुड़ी हुई है फौजियों की। गुरुजी कहने लगे कि जो क्योर है ना, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारी गुरु की पावर जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए इंसान का माइंड एंड हार्ट बहुत प्योर एंड ओपन होना चाहिए। कहते फौजी लोगों को एक यंग एज के अंदर आप फौज में ले लेते हो, उसको शुरू से ही एक डिसिप्लिन तरीके से आप उसको फौज के अंदर रखते हो। He is kept isolated from the rest of the society, जिसके अंदर दिमाग करप्ट होता है या हर तरह के लोग काम कर सकते हैं। तो वो one reason है जिससे जो फौजी हैं they are much easier to handle, they are they're easier to give blessings.
So this is, and he says, doctors come to us because doctors know that in their own professions, एलोपैथी को भी पता है, वो alternate therapy में खुद जा रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अपनी फैमिली की ट्रीटमेंट के लिए alternate therapies में. उनको पता है कि there are limitations of modern medicine, and that is how they come to me. And उस दिन उन्होंने मेरे को जो नेक्स्ट बात बताई वो अगेन is the second gist of Guruji's system. See, गुरुजी ने कहा कि जब आपको घर के अंदर छोटा सिर दर्द वगैरह होता है तो आप अपने मेडिसिन बॉक्स से निकाल के एक एस्पिरिन खा लेते हो और then you become all right. अगर आप ठीक नहीं होते तो आप 2-3 दिन बाद हाउस फिजिशियन को फोन करते हो, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, और उसको कहते हो तो वो डॉक्टर आपको कोई और दवाई दे देता है, तो आप खाते हो. फिर हफ्ता निकल गया, आपकी तकलीफ ठीक नहीं हुई, फिर वो कहता है ये थोड़ी सी ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो. आप टेस्ट करा लेते हो, टेस्टों में सब नॉर्मल निकलता है, मगर आपकी तकलीफ खत्म नहीं हुई. Then he will recommend you to some specialist. कहता आप स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लोगे, आप उनके फीस दोगे, अपॉइंटमेंट टाइम पे पहुंचोगे स्पेशलिस्ट के पास, वो लाइन लगी होगी, वेट करनी पड़ेगी 1-2 घंटे के बाद. उसके बाद वो MRI कराएगा, कुछ और कराएगा, या सर्जन के पास भेजेगा, या ऑपरेशन कराएगा. 6 महीने आप चक्कर लगाते हो. जब सारा कुछ हो गया, तकलीफ आपकी गई नहीं, फिर आप गुरु के पास आओ. और देखो, कहते जब गुरु के पास आ रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपने मर्जी के टाइम पे आओ, अपने मर्जी के टाइम पे ब्लेसिंग लेके चले जाओ. फ्री में पानी प्रसाद, फ्री में चाय प्रसाद, फ्री में लंगर प्रसाद, फ्री में भजन सुन रहे हो, हर तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है. अपनी पेस पे चल रहे हो, कोई आपको किसी तरह का आप पे प्रेशर नहीं है. और फिर भी आप यहाँ आके वो 6 महीने भूल जाते हो, कहते हो गुरुजी अभी मेरे को 1 मिनट के अंदर ठीक कर दो. तो द पॉइंट ही वाज मेकिंग इज दैट you come to gurus only when all your other systems are failed. Give a chance to the guru, give a chance to this environment to make you all right. So I think this is another point. One is your own capacity, focus, आपका एंटेना बिल्कुल करेक्टली जुड़ा जाना चाहिए. और दूसरा आपको पता होना चाहिए, जब आप गुरु जी यहाँ आए हो, आप सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हो. ब्लेसिंग काम करेंगी, सब पे कर रही हैं. आज हम सब जो संगत बैठी हुई है, हम सब के ऊपर वो काम कर रही है. इसलिए it is very important to understand these two aspects which I have explained to you. Now 1-2 बस और सत्संग सुनाऊंगा, उसके बाद I will finish. 2012 में मैं एयर मार्शल रैंक हो गया था. मैं मिराज 2000 पायलट हूँ. स्क्वाड्रन विजिट करने के लिए ग्वालियर गया था. ट्रेडिशनल है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जब वो पायलट्स हैं, वो आके अपनी स्क्वाड्रन के साथ जरूर फ्लाइट करते हैं. और मैंने भी मिराज 2000 फ्लाइट उनके सीईओ के साथ उड़ रहा था 2 सीटर के अंदर. और जब हम टेक ऑफ किए तो 11,000 फुट की ऊंचाई पे 5 मिनट टेक ऑफ हो चुके थे. तो एक बहुत धमाका हुआ इंजन के पीछे, फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई, इंजन फेल हो गया, सीज हो गया. और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि इसको इंजन को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता. सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था. हमको ये पता था कि हमको अभी इजेक्ट करना है. जो इजेक्शन है वो बहुत एक सीरियस इशू है. अक्सर जो लोग इजेक्ट करते हैं उनके नेक या बैक में कोई ना कोई तकलीफ रह जाती है. खास करके मेरे केस में मैं 59 इयर्स 2 मंथ्स की एज का था. एनीबडी इजेक्टिंग बियॉन्ड 40 इयर्स एज, उसके लिए बहुत तकलीफ हो सकती है. एंड इवन आज तक वर्ल्ड का मैं इकलौता एयर मार्शल हूँ जो एक फाइटर जहाज से इजेक्ट किया है. तो उस हालात के अंदर जो मेरे को 15-20 सेकंड्स थे जिसमें हमको ये डिसीजन लेनी थी कि अब हमको इजेक्ट करना, तो मेरे दिमाग में 2 बातें आई. एक बात तो मैंने अपने आप को कहा कि मैंने कहा चोपड़ा आज तेरी लाइफ की सारी ट्रेनिंग का टेस्ट है. और दूसरा मैंने कहा गुरुजी आज आप अपना हाथ मेरे शोल्डर या सिर पे रख देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. और उसके बाद ने हैंडल पुल किया, जहाज से इजेक्ट हुए. 2.5 मिनट सेकंड्स के अंदर 2.5 सेकंड्स के अंदर 19 कार्ट्रिज या रॉकेट्स फायर करते हैं एक प्री डिस्टाइंड सीक्वेंस के अंदर. बहुत ज्यादा बॉडी पे फोर्स लगती है. आप बिल्कुल, आपको तारे नजर, जिसको कहते हैं ना, वो सचमुच के तारे नजर आते हैं. मगर 2.5 सेकंड के बाद जब मेरा पैराशूट खुला
तो मैंने देखा ब्यूटीफुल अर्थ बिलो अस, चंबल की घाटी थी, हम उसके ऊपर उड़ रहे थे जब ये पैराशूट खुला, और मैंने सबसे पहले गुरुजी को थैंक्स किया। मैंने कहा गुरुजी आज तो बचा लिया। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि गुरुजी हैज you see the स्वरूप behind me, हर कमरे में हमारे गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी के भजन सुनते हैं, गुरुजी को बेड से उठते हैं तो सबसे पहले चीज जो हमारे को नजर आती है वो गुरुजी है। तो जो गुरुजी के साथ जुड़ गए हो वो एक हमारी ब्लेसिंग्स हैं। कोई लोग हर रोज आज भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं। अगर आप पुराने जमाने में जुड़े या आज जुड़े, इट्स इक्वली ग्रेट, इट्स इक्वल। हर की अपनी अपनी समय है, हर कोई अपने अपने समय पे जुड़ेगा, हर कोई अपने अपने समय जुड़ रहा है, एंड दे आर कंटिन्यू टू गेट ब्लेसिंग्स। गुरुजी की यहाँ एक फ्रेग्रेंस होती थी। कभी कभी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो एक गुलाब के फूलों की महक, एक फ्रेग्रेंस गुरुजी के यहाँ से आती थी। कई लोग जो पुरानी संगत है अभी भी कई बार वो रात को अपने बेड में वो गुरुजी की संगत फ्रेग्रेंस उनको आ जाती है। और बहुत लोग हैं जिन्होंने वो फ्रेग्रेंस को देखा है। और भजन सुनते रहिए और गुरुजी के साथ जुड़ते रहिए, सत्संग करते रहिए, सत्संग कराते रहिए। You will be blessed. I am personally once again very grateful सुरेश वासिम जी, मुक्ता आंटी और सभी संगत जो हैं, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, और for giving me this chance to narrate my satsang, for by doing that getting the blessings of Guruji. Jai Guruji and thank you Sangat, thank you very much. जय गुरुजी। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। इतना प्यारा सत्संग आंटी जी से, अंकल जी से गुरुजी महाराज जी ने सुनवाया। गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग सारी संगत को मिले, और गुरुजी से यही अरदास करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं घर आए, सभी को रोजी रोजगार मिले, सभी का हेल्थ अच्छा हो। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग देखने को सुनने को आपको मिलता रहेगा। जय गुरुजी। सत्संग के दौरान यदि कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज जी आप और संगत जी आप क्षमा करें। जय गुरुजी।